welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So today's our topic is wisdom of a son. We have a story, interesting story. एक बेटे की बुद्धिमानी. So we will read this story. Long ago there lived an old merchant. एक old merchant रहता था बहुत समय पहले. जो नाविक होते नाव वगैरह में होते हैं उनको merchant बोलते हैं. He used to work hard from morning till late at night, as a result of which he made a lot of money. वो सुबह से लेके शाम तक काम करता रहता था जिसके कारण उसने बहुत पैसे कमा लिए थे. As the time passed he earned a lot of money. जैसे जैसे टाइम निकलता गया उसके पास और पैसा बढ़ता गया. With the passage of time he grew old, लेकिन साथ में वो बूढ़ा भी होता गया. One day he felt that he had not to live in this world. एक दिन उसको ऐसा फील हुआ कि अब मुझे इस दुनिया में और नहीं रहना है. But he was very much worried, thinking, what would I do with my money? लेकिन वो ये सोचकर बहुत परेशान था कि उसके पास जो इतना पैसा है उस पैसे का वो क्या करेगा. So now he had two sons. उसके दो बेटे थे. He decided that he would not divide his money between them, but he would give it all to the one who proved himself to be wiser of the two. तो अब उसने ये सोचा कि उसके पास जो पैसा है वो अपने दोनों बेटों में तो डिवाइड करेगा नहीं, लेकिन जो ज्यादा होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, उसको वो अपना सारा पैसा दे देगा. बट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम बिफोर हिम वाज हाउ टू फाइंड आउट विच ऑफ हिज सन वाज वाइजर देन अदर. ये प्रॉब्लम ये थी कि ये कैसे पता करे कि कौन सा बेटा ज्यादा समझदार है, ज्यादा होशियार है. He decided to solve this problem by giving them a test. तो उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक टेस्ट देकर. He called both the sons and said, "Here are 2 rupees. I want you to take 1 rupee each and then go out to the market and buy something which will fill this house." तो उसने 2 रुपए दिए और उन्होंने बोला इसमें से एक रुपए आपस में बांट लो और बाजार जाओ, मार्केट जाओ, वहां से कुछ ऐसा लाओ जिससे ये पूरा घर भर जाए. So you are not to spend more than 1 rupee. लेकिन तुम्हें 1 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है. Both the sons looked at him as if he had taken leave of his sense. सब उसको अचंभित होकर देखने लगे. They were reluctant to take rupee, but the old man said, "Off you go and not take long over the business." उसने बोला मतलब 1 रुपए में वैसे भी सोचा कि क्या ला सकते हैं, सोचने लगे. फिर जैसे ही वो लोग वहां से निकले, You should come back within a couple of days. उसने ऐसा बोला कि तुम कुछ दिनों में ये सोच के फिर वो सामान लेकर आ सकते हो. So each of his son took up a rupee and left the house. एक रुपया लेके वो घर छोड़कर घर से चले गए. The first son walked through the market, but he found nothing that would serve the purpose. जो पहला बेटा है उसने पूरा मार्केट घूमा लेकिन उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसकी शर्त को पूरा कर सके. He went on wandering the whole day, but all in vain. पूरे दिन वो घूमता रहा लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया. When he was about to give up the search in despair, he saw a bullock cart with load of hay. Load of hay मतलब क्या होता है? ये जो भूसा रखा हुआ है. तो जब वो शाम के टाइम उसने देखा कि एक बैलगाड़ी पे बहुत सारा भूसा रखा हुआ है, हे बोला जाता है इंग्लिश में उसे. He thought, how much hay can I get for a rupee? 1 रुपए में वो कितना सारा हे ले सकता है. He went up to a driver of the cart and after a good deal of haggling over the price, he was able to get the load of hay for a rupee. और उसने फिर उससे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उसने 1 रुपए में बहुत सारा हे ले लिया. So the young man led off the cart with hay to his father's house. फिर उस बैलगाड़ी को लेके जो जिसपे भूसा रखा हुआ था अपनी घर की तरफ बढ़ा. But when the hay was in, he found that there was not enough to cover even the floor, let alone fill the whole house. तो मतलब जब उसने hay को देखा तो उसको ऐसा लगा कि इससे पूरा घर तो नहीं भर पाएगा. The second son also went out with his rupee. दूसरा बेटा भी 1 रुपए लेके बाहर गया. He happened to reach a shop where candles were sold. वो वहाँ पहुँचा जहाँ पे candles बिक रही थी. He spent his money on candles. Then taking the candles, he came back to his father's house. तो वो गया और उसने कैंडल खरीद ली और फिर वो वापस अपने फादर के पास आया. It was now getting dark.
He stood 2 or 3 candles in each room. उसने जैसे अंधेरा होने लगा था तो हर एक कमरे में 2 या 3 कैंडल्स उसने लगा दी. Then he lit them और उसने उसे जलाया. At once the house was filled with light. तो पूरा घर क्या हुआ, रोशनी से जगमगाने लगा. His father was very pleased with him and said, "My son, you have shown true wisdom." वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल सही समझदारी बताई है. I am willing to hand over all the money to you. मैं अपना पूरा पैसा तुम्हें देना चाहता हूँ. Now next we have a Hindi translation. So बहुत पहले की बात है, एक वृद्ध व्यापारी था. वह सुबह से रात तक कठिन परिश्रम किया करता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बहुत धन कमाया. समय के साथ साथ वह बूढ़ा होता गया. फिर एक दिन उसे लगा कि वह इस संसार में अधिक नहीं रह पाएगा, परंतु वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि वह अपने धन का क्या करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था. उसके 2 बेटे थे. उसने निर्णय लिया कि वह अपना धन उनके बीच नहीं बांटेगा, बल्कि वह यह सब उस एक को देगा जो स्वयं को दोनों में अधिक बुद्धिमान साबित करेगा. परंतु उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे पता लगाए कि उसके बेटों में कौन अधिक बुद्धिमान है. इसके लिए उसने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया. उसने दोनों बेटों को बुलाया तथा कहा, ये 2 रुपए हैं. मैं प्रत्येक को 1-1 रुपए देना चाहता हूँ और तुम्हें इससे बाजार से कुछ ऐसा खरीदना है जिससे कि यह घर भर जाए. तुम्हें 1 रुपए से अधिक खर्च नहीं करना है, 1 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है और कुछ ऐसा खरीदना है जिससे यह घर भर जाए. सो नाउ नेक्स्ट, दोनों बेटों ने उसकी ओर इस प्रकार देखा जैसे कि वह होश में ना हो. वे 1 रुपए लेने के इच्छुक नहीं थे, परंतु बूढ़े आदमी ने कहा, अब जाओ और अपने कार्य में अधिक समय नहीं लगाना, तुम्हें 2 दिनों में ही वापस आना होगा. अतः उसके प्रत्येक बेटे ने 1 रुपए लिया तथा घर छोड़ दिया. पहला बेटा बाजार में घूमा, परंतु उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसके उद्देश्य को पूरा करता हो, जो उसके ऊपर शर्त रखी गई थी उसे वो पूरा करता हो. वह पूरे दिन घूमता रहा, परंतु सब व्यर्थ था. वह निराश होकर चलने ही वाला था, तभी उसने भूसे से भरी हुई एक बैलगाड़ी को देखा. उसने सोचा, मैं 1 रुपए में कितना भूसा खरीद सकता हूँ. वह बैलगाड़ी हाँकने वाले के पास गया तथा काफी मोल भाव करने के बाद उसने 1 रुपए में सारा भूसा खरीद लिया. अतः वह भूसे से भरी गाड़ी को अपने पिता के घर ले गया, परंतु जब उसने भूसा अंदर डाला तो उसने पाया कि इससे तो पूरे घर की फर्श को भी नहीं भरा जा सकता. पूरे घर को भरने की बात तो दूर थी. दूसरा बेटा भी अपना रुपए लेकर गया. वह एक दुकान पर पहुंचा जहां मोमबत्तियां बिक रही थी. उसने अपना धन मोमबत्तियों पर खर्च किया. फिर मोमबत्तियां लेकर वह अपने पिता के घर वापस आया. अंधेरा हो रहा था. उसने प्रत्येक कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियां लगा दी, फिर उन्हें जलाया. तुरंत ही घर प्रकाश से भर गया. उसके पिता उससे बहुत प्रसन्न हुए तथा बोले, मेरे पुत्र, तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है. मैं अपना सारा धन तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ. सो नाउ नेक्स्ट इज वर्ड मीनिंग्स. मर्चेंट व्यापारी, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, रेलिक्टेंट मीन्स अनिच्छुक, डेस्पेयर मीन्स निराशा एंड हैगलिंग मीन्स मोल भाव करना. Now the old merchant had 2 sons, 3 sons और 4 sons. So he had 2 sons, 2 बेटे थे उसके. Now next is the old merchant gave his son. Old merchant ने अपने बेटे को क्या दिया? 1 rupee each, 2 rupee या 3 rupee, तो 1 rupee each. एक के पास 1 ही रुपए था, तो 1 rupee each. Now next, the first son bought dash. पहला बेटा क्या लेके आया बच्चों? कैंडल्स, लोड ऑफ है या नन ऑफ दिस? तो आ लोड ऑफ है. भूसा लेकर आया था बहुत सारा, लोड ऑफ है. नाउ नेक्स्ट वन, द सेकंड सन बॉट. दूसरा बेटा क्या लेके आया? कैंडल्स. आ लोड ऑफ है या नन ऑफ दिस? तो दूसरा बेटा क्या लेके आया? यस, वेरी गुड, कैंडल्स लेके आया. नाउ नेक्स्ट, The old man gave all his money to. Old man ने अपना पूरा पैसा किसको दिया? फर्स्ट सन को, सेकंड को या बोथ ऑफ देम? तो जो कैंडल लाया था वो कौन सा बेटा था? सेकंड सन. तो पूरा पैसा उन्होंने उन्हीं को दिया. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू एंड फॉल्स है यहाँ पे. सो ऑल हिज लाइफ द मर्चेंट हैड वर्कड हार्ड. पूरी लाइफ जो है व्यापारी ने बहुत मेहनत की. तो यस, दिस वन इज ट्रू. उसने बहुत मेहनत की है.
he decided that he would not divide his money. उसने डिसाइड किया कि वो अपना पैसा अपने बेटों में बांटेगा नहीं. The merchant had only two sons. मर्चेंट के दो ही बेटे थे. Yes, this is also correct. दो ही बेटे थे मर्चेंट के. नेक्स्ट वन, द यंगर सन वॉज वाइजर देन एल्डर वन. छोटा वाला ज्यादा समझदार था. यस, उसने प्रूफ किया कैंडल्स लाके, इसलिए सारा पैसा भी उसे मिला. द एल्डर सन वॉज सक्सेसफुल इन बाइंग द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपी. उसने 1 रुपए में बहुत सारा भूसा खरीद लिया था, लोड ऑफ हे. तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मर्चेंट हार्ड वर्क. मर्चेंट के हार्ड वर्क का क्या रिजल्ट था? तो रिजल्ट क्या था? ही मेड अ लॉट ऑफ मनी. उसने बहुत पैसा कमा लिया था अपनी मेहनत से. तो द रिजल्ट ऑफ द मर्चेंट हार्ड वर्क, मर्चेंट की हार्ड वर्क का रिजल्ट था वॉज ही मेड अ लॉट ऑफ मनी. ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा. नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी सन्स डिड द मर्चेंट है. मर्चेंट के कितने बेटे थे? तो मर्चेंट है 2 सन्स, 2 बेटे थे उसके. नेक्स्ट, हर क्वेश्चन से क्वेश्चन मार्क बीच से हट जाएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन मैंने अंडरलाइन किया है बच्चों, वो आंसर में आएगा. नेक्स्ट, व्हाट डिड द फर्स्ट सन बाय. तो फर्स्ट सन ने क्या खरीदा? तो द फर्स्ट सन बॉट, क्या खरीदा उसने? अ बुलक कार्ट. बुलक कार्ट विथ लोड ऑफ हे. वो बैलगाड़ी जिसमें पूरा भूसा भरा हुआ था, उसने वही खरीद ली. नेक्स्ट, लेकिन हे खरीदा उसने, उसका भूसा खरीदा था. What did the second son buy? सेकेंड सन ने क्या पाया? तो कुछ कैंडल्स लेके आया था. तो the second son bought some candles. उसने कैंडल्स खरीदी थी. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड व्हेन द सेकंड सन lit the candles. जब उसने कैंडल्स को जलाया तो क्या हुआ? तो when the second son lit the candles at once filled with light. पूरा घर जो है वो किस पे भर गया? तो पूरे में उजाला आ गया, लाइट आ गई, रोशनी आ गई. So when the second son lit the candles, ये पूरा हमें क्वेश्चन से कवर करना है. at once, इसके बाद आएगा बच्चों यहाँ at once, एक ही बार में. The house was filled with light. The house was filled with light. रोशनी से पूरा घर भर गया. Now next is rewrite the following sentences into past sentence. इनको हमें past में कन्वर्ट करना है. तो इनका जो मेन वर्ब है, वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में बदल जाएगा. द क्रोस फ्लाइज हियर एंड देयर. तो द क्रोस फ्लू, है ना, हियर एंड देयर. तो ये पास्ट में बदल जाएगा. द क्रोस फ्लू हियर एंड देयर. नाउ नेक्स्ट, द क्रो सीज अ पिक्चर अंडर अ ट्री. उसने पिक्चर देखा, तो सीज का क्या हो जाएगा? सॉ. उसने देखा था, तो ये पास्ट में बदल गया. द क्रो सॉ अ पिक्चर. सॉ अ पिक्चर है, सॉरी, दिस इज अ पिक्चर. अ पिक्चर अंडर अ ट्री. नाउ नेक्स्ट, it tries to drink the water. it tries to drink the water. to drink क्या हो जाएगा बच्चों? drank. D-R-A-N-K, drank. so it tries to drink the water. now next, its beak does not reach the water. उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी, तो its beak did not, या does not की जगह क्या होगा बच्चों? did not.
did not reach the water. Now next is translate the following sentences into English. इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बच्चों. तो तुम्हारी कितनी बहन है? तो how many sister do you have? First one is how many sister do you have? Now next, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो how much money do you have? तुम्हारे पास कितना पैसा है? How much money do you have? Now next, क्या उनके पास 3 कारें हैं? Do they have 3 cars? Now next, this is S, cars. क्या उसके पास 50 रुपए थे? तो did he have 50 rupees? क्या उसके पास 50 रुपए थे? Did he have 50 rupees? Now next, उसके पास क्या है? तो what does he have? उसके पास क्या है? What does he have? So this is all about it बच्चों. इस चैप्टर से the moral of the story is कि हमेशा हमें कैसा होना चाहिए? समझदार होना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए. जब भी हम समझदारी से काम लेते हैं, इंटेलिजेंस दिखाते हैं अपनी, और हमेशा मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लेते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा ही बहुत भला होता है. तो हमेशा अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छी चीजें हो, पॉजिटिविटी हो हमारी लाइफ में, तो हमारा जेन्युइन एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि हमेशा हम मैच्योरिटी के साथ कोई भी डिसीजन ले. वी हैव टू टेक ऑल द डिसीजंस विथ मैच्योरिटी, हैविंग अ जेंटल एंड काइंड हार्ट, और हमेशा अच्छे से सोच विचार कर सके कि आखिर हमें करना क्या है ना. जैसे उसके दूसरे बेटे ने अच्छे से सोचा कि उसके लिए क्या करना था. उसने कैंडल्स ली जिससे पूरा घर रोशनी से भर गया. तो इस तरीके से जब भी हम सोचें तो हमारी सोच एक पॉजिटिविटी के तरफ बढ़नी चाहिए, जिससे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके. वो पूरे घर को उसने रोशन कर दिया और पूरा पैसा भी उसको ही मिल गया उसकी समझदारी के कारण. So this is the moral of the story. Thank you class.